नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब नए सांसदों को दिलाएंगे शपथ। नीट परीक्षा पर हंगामे के भी आसार। संसद सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री, विकसित भारत के संकल्प के साथ नया सत्र। 25 जून कभी ना भूलने वाला दिन, देश को बना दिया जेल खाना। अरविंद केजरीवाल की बेल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ दी अर्जी, लोअर कोर्ट से मिली थी जमानत। शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल पैनल की बैठक आज। एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। पेपर लीक पर भी होगा मंथन। राजस्थान के टोंक में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में अब तक 1 की मौत, 18 लोग घायल। खत्म हुआ मानसून का इंतजार। यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में होने वाली है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। सीधा आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखते हैं। तो लोकसभा के भीतर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 18वीं लोकसभा सत्र का आज पहला दिन है और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी, we are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members
I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Sri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन मोदी जी संविधान Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुदेव बंदोपाध्याय। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह,
मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री शिवराज सिंह चौहान।
मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री HD कुमारस्वामी। ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाउअछि ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
श्री राजीव रंजन सिंह एलियस ललन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। मैं सर्बानंद सोनोवाल लोकसभार सदस्य निर्वाचित होवात ईश्वৰৰ नामत शपथ खाई कওঁ जे विधिर द्वारा स्थापन करा भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण কৰিবলৈ ওলোৱা कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिम। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री जुआल ओराम, ମୁଁ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହନ କରିବି। श्री गिरिराज सिंह, मैं गिरिराज सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया,
मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
श्री किरेन रिजिजू। और आपको बता दें यहाँ पर विशेष सत्र का आयोजन लोकसभा का आज किया गया। आज पहला दिन है और जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैबिनेट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंची, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 19 विधायक और 13 मंत्री के साथ स्पीकर भी मौजूद। वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने हरियाणा कैबिनेट का स्वागत किया है। आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट रामलला का दर्शन पूजन करेगी। लगभग 1 घंटे रामलला के परिसर में मौजूद रहेगी। नायब कैबिनेट 11:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से हरियाणा कैबिनेट हरियाणा के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, लगभग 5 वर्षों के बाद आज राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया, आदरणीय श्री योगी जी के द्वारा यहाँ पर निर्माण हुआ। ये बड़ा सौभाग्य है। 5 लाख लोगों ने शहीदी देकर आज हम रामलला के दर्शन करने आए हैं। हरियाणा से हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी कैबिनेट मिनिस्टर सभी आए हैं, तो मैं बहुत बहुत यहाँ आकर आभारी हूँ। भगवान राम यहाँ दर्शन करने आए। क्या नाम है सर आपका? मैं सुभाष सुधा, हरियाणा प्रदेश में लोकल बॉडी मिनिस्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अयोध्या पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जो कि समय था 9:30 बजे का। उससे पहले जो है मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, उनका काफिला जो है यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। इनकी पूरी कैबिनेट इनके साथ मौजूद है। और जब यहाँ से इनका काफिला जो है राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगा, करीब 1 घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे। वहाँ पे भगवान राम का दर्शन करेंगे और ट्रस्ट के जो भवन निर्माण के चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी रामनामा भेंट कर मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत करेंगे। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद जो है राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे और वहाँ से निकलकर पुनः जो है हरियाणा के लिए रवाना होंगे। प्रवेश पांडे के न्यूज़ अयोध्या। और अब आपको कानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र की लापरवाही सामने आई। घायलों का जमीन पर लेटाकर किया जा रहा है इलाज। महिला के इलाज का वीडियो आपको बता दें कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में घायल महिला को सीएससी में नहीं मिला बेड। चौबेपुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का बताया जा रहा है वीडियो। घायलों का जमीन पर लेटाकर किया जा रहा इलाज। जमीन पर पड़ी महिला के इलाज का वीडियो हो रहा वायरल। घायलों का जमीन पर लेटाकर किया जा रहा इलाज। जमीन पर पड़ी महिला का इलाज का वीडियो वायरल। मारपीट में घायल महिला को सीएससी में नहीं मिला बेड। मारपीट में घायल महिला का जमीन पर लटाकर किया जा रहा इलाज। महिला को नहीं मिला बेड। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए आज के दिन नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के दौरान
क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत प्रदेश सरकार की नौकरियों में ये क्रीमिलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया जाएगा। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय शामिल नहीं है। आज हमारे हरियाणा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, और हमारे विप्लव देव जी, आज रोहतक में हमने जो हमारे हरियाणा से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 हमारे सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया है। हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त किया है और सभी मंत्रियों का और प्रभारी महोदय का हमने वहां पर स्वागत भी किया है। इसके साथ साथ हमने आदरणीय प्रभारी जी ने एक हम सब को दिशा दी है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उस झूठ को हम आगे बिकने नहीं देंगे। अंबाला की शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीने से जारी किसानों के धरने में उस वक्त हंगामा हुआ जब अंबाला शहर कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, कपड़ा मार्केट के दुकानदार व धरने के आसपास के गांवों के कुछ लोग अचानक किसानों के बीच पहुंच गए। इन लोगों के आंदोलन का माहौल खराब करने के साथ साथ किसान भी जबरन कब्जे में लेने का प्रयास किया है, जिन्हें स्टेज के नजदीक बैठी महिलाओं ने रोका, जिसके बाद मामले को लेकर किसानों ने पंजाब के शंभू थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते गर्भवती महिला सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके चलते उन्हें फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। बता दें कि इस हादसे में गर्भवती महिला पूजा और उसके पति सोनू को काफी गंभीर चोटें आई हैं और इसलिए मकान मालिक राहुल चंदेला में दोनों पति पत्नी सहित 4 घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। खबर आपको हम बता रहे हैं, फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया है और हादसे में गर्भवती महिला पूजा और उसके पति सोनू को गंभीर चोटें आई हैं। ये लोग अंदर थे। हाँ, ये जो है ना मकान टूटी है ना, टूटी जैसे हवा जब आ रहा था, हम सब सोचे कि गर्म है, बारिश आ रहा, तो हम जा करके बेटा ठंडा रहते हैं। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जो बयान दिया है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो ये भी कहते थे 400 पार, लेकिन अब हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को साफ कर दिया है और विधानसभा में साफ करेंगे। इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में लोकसभा में तो हाफ हो गए ना, विधानसभा में साफ होंगे वो। सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह लोगों में जोश देखा,
लेकिन देश इंतजार करें। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। सर JP दलाल का विरासत को लेकर कहें, जहाँ तक विरासत का सवाल है, चौधरी बंसीलाल है या और हमारे बुजुर्ग नेता हैं, वो तो हम सब उनकी विरासत है। वो तो मतलब विरासत सबके छोड़ी गए। मुख्यमंत्री उनकी बातों में नहीं आए लोग, इनको देख लिया, 10 साल देख लिया। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर पठानकोट नेशनल हाईवे पर गांव जीवनवाल बबरी के फ्लाईओवर पर खड़े रेत से भरे टिप्पर से अमृतसर से आ रहा एक बाइक टकरा गई, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नंदन कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी बाबा बकाला के रूप में हुई है। मोहाली में शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब मुल्लापुर थाने के अंतर्गत पड़ते गांव माजरा स्थित यूनियन बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने आपसी कहासुनी पर फायरिंग की। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, जिसे इलाज के लिए चंडीगढ़ के पेशवा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।